चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कनेक्टिविटी विथ पाइथन माइस्क्यूएल। इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो ये मान के चलता हूं कि आप इस टॉपिक को जब कवर कर रहे होंगे, सो बिफोर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक ऑफ माइस्क्यूएल। In this topic we will discuss only MySQL connectivity with the Pythons. So it's mean you already know how to create a database, how to create tables, how can we insert the tables, how can we update the tables, and how can we manipulate the elements or values in any table. So that is the connectivity which we will learn in this tutorial. So first we will discuss, or first we will learn little bit about the theory concepts, and then I will show you how to we can implement that in a practically form. So पहले ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये रिवाइज कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को ये टॉपिक समझना है तो उससे पहले अपने 12th की बुक से जो टॉपिक्स हैं कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्वेरीज क्या होती हैं, क्वेरीज का रिजल्ट क्या होता है, ये सब सीखें। उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करें। दिस इज माय फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस topic. So let's start. What is MySQL? We know that MySQL is to create the database. We can create the database for schools, for organizations, and where we can insert the values, and after inserting that values we can manipulate the values, we can create the tables, we can fetch the data as per our requirement. So for fetching a specific data, suppose you have to select the name of particular student, then you write the queries in select, then column name, from where. You already have discussed all these things in your last topics. So let's focus on the connectivity issue. That is the topic, that how can we start. So before we have to start the connectivity, we have to be little bit set your Python, because MySQL is an external software, you can say, that is used to create database. That's why the MySQL is your database management software. So MySQL Python connector, that is the connectivity tool that is used to connect your MySQL database with for Python. So for that you need a database driver. So first of foremost we have to be download that software on your PC. हम करना ये चाहते हैं कि पहले मैं MySQL से कनेक्टिविटी करूं, उससे पहले मैं MySQL कनेक्टिविटी के सेटअप को शो करूं। इसके लिए मुझे MySQL कनेक्टर एक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि MySQL एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, पाइथन एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए हमें ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी विल फर्स्ट डाउनलोड द ड्राइवर्स. So this is a step you have to follow. You have to be type pip install MySQL connector. This is the command which you have to be type on your. This is the command which you have to type on your PC. Then once you have installed, it will take 1 or 2 minutes to install this simple, and then you can start your connectivity. So just after installation, if you have to check that whether I have installed my MySQL connector properly or not, you can use this simple statement. You can write down the import MySQL connector statements. So when you will run and you will find there is no error, that means you have installed your connector. Now these are the 4 basic steps which we have to keep remember. These are very easy steps, and we have to follow these steps in connection of your connectivity. First and foremost you have to import a driver, that is, or module, that is MySQL connector. Then we have to create the connection object. देखिए जब डेटा आपके पास आएगा तो कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा. Then we have to create a cursor. जब डेटा आएगा आपके पास तो किसी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, तो उस मेमोरी को मैं यहाँ पे we can say a cursor. And then finally if you have a cursor, you can execute the queries. This query is simply your MySQL queries which you have written. In our next few slides you will see that how can we run these queries. देखिए, let's start. Let's remember this syntax, and then it's very easy. It's very easy. Even you can run this program on your PC and it will work. So first and foremost step is to import the connection state, import the MySQL connector module, and then we have to establish the connection.
भाई आपको अपने दोस्त को फोन करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू बी एस्टैब्लिश कनेक्शन. यू पिक ए फोन एंड देन डायल ए नंबर एंड देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू योर फोन. तो सिमिलरली MySQL को जब हम कनेक्ट करेंगे पाइथन से, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है. फॉर दैट कनेक्शन देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज अ कनेक्ट. लेट्स सी दिस सिंटैक्स. First you have to write the connection object, then dot connect host equal to host name. Host name means वो कंप्यूटर का नेम जहाँ से आप कनेक्ट करना है. By default it's a local host name, means हमें अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना. That's why we write down the local host. Then user, that's user that is using in to connect your MySQL. जैसे आप लोग अपने MySQL में जब ऑन करते हैं तो उसमें that is by default is root and then password. ठीक, this is the first statement. So by using this statement you can establish your connection. See this code, you can run this code on your PC and you will find that it will run import and see host that is local host and user that is local user and the password for that users. So बच्चे जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो MySQL इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो यूजर और पासवर्ड आपने सेव किया था वही यूजर और पासवर्ड यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, जैसे मैं अभी अपने एग्जांपल दिखाऊंगा. मैंने अपने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं रखा है. सो इन माय पीसी देयर इज ए नो पासवर्ड फील्ड. देन कर्सर आर टू क्रिएटेड बाय द कर्सर फंक्शन. दे आर बाउंड टू कनेक्शन द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम एंड ऑल कमांड्स आर एक्सिक्यूटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटाबेस. सिंपल टर्म्स में क्या है, अब आपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया पहले स्टेटमेंट में. अब मैं MySQL के से रन करा सकता हूँ अपनी क्वेरीज को MySQL सर्वर या फिर लोकल होस्ट के लिए. अब उसी मुझे जब कर्सर यानी कि जब मेरे पास कनेक्शन स्टैब्लिश होना है तो कनेक्शन को मुझे ऑन रखना है और वो क्वेरीज के लिए मुझे कर्सर बनाना पड़ता है. ठीक है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हो या फिर एक एरिया कह सकते हो जहाँ पे हम वर्क करेंगे. सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एग्जांपल्स को समझेंगे. आप इन एग्जाम्स को अपने पीसी पे रन करेंगे या तो आप देखोगे इट विल रन और इट विल tell you how it works. See this example. First statement is import MySQL connector. As I told you, this is the first statement that is used to import the module which establish the connection. The second is connection statements. So MySQL connector, you can rename it as a M or something else. Then connect is the function. I establish the connections. Then you have to create the connection. After creating the connection you have to create the cursor. So there is a function cursor. See, this is a function cursor. The connection is the object is a connection dot cursor. It will create a cursor that name is my cursor. It's working example. See, this is a working example. Now then there is a cursor dot execute is a function that is used to execute the queries. And suppose I have to see the result. Suppose I have to see how many database exist in my PC, then I am simply writing the show database command. So database is this is your query which you have to be write down. तो जब हम देखिए हमें पता है जब show database को हम रन कराते हैं हमारे MySQL पे तो ये क्या देता है, ये database देता है. जैसे अभी देखिए मैं करा के दिखाता हूँ आपको. देखिए अगर मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस कमांड रखता हूँ तो इट शोज देयर आर 2 डेटाबेसेस. सिमिलरली आपके पीसी पे नंबर ऑफ डेटाबेसेस हो सकते हैं. अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे जो भी क्वेरी हम लिखते हैं वो क्वेरी बेटा एग्जीक्यूट हो जाती है. एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज स्टोर इन अ माय कर्सर पॉइंटर. ये यहाँ स्टोर है. सो अगर मुझे ये रिजल्ट देखना है तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जैसे हम लोग नॉर्मली लगाते हैं. फॉर लूप का यूज हम करते हैं रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए. x इन ए माय कर्सर एंड प्रिंट x. जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए जो स्क्रीन पे MySQL रिजल्ट आएगा वो अब आपके कंसोल पे शो होगा इस तरह से डेटाबेस का. सो दिस इज द वर्किंग एग्जांपल. यू कैन रन इट ऑन योर पीसी. लेट्स सी. तो बच्चों जितना हमने देखा है उसका एक प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको वर्क कर सकते हैं. देखिए मैंने एक यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. डेटाबेस का नाम टेस्ट है. उसमें कुछ बच्चों के नाम डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है. मैं सिर्फ ये रन करा के दिखता हूँ कि वर्क कैसे करता है. सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है. इंपोर्ट MySQL connector MS. सो व्हेन गोइंग टू रन इट नॉट शोइंग एनी एरर. देन आई हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन.
ठीक है। सो कनेक्शन के लिए मेरे पास है कनेक्ट, आपके पास कनेक्ट जो आपका फंक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर टू कनेक्ट द कनेक्शन बिटवीन द MySQL एंड योर डेटाबेस। सो देखिए यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट, अपने कंप्यूटर का लोकल होस्ट बोला है, यूजर जो है रूट है, बाय डिफॉल्ट ये रूट होता है, पासवर्ड मेरे कंप्यूटर के केस में नहीं लगाया है मैंने अपने डेटाबेस में, एंड देन द डेटाबेस नेम विच आई एम गोइंग टू बी कनेक्ट। So when I am going to run this, there is a no error means there is a connection established. So connection established होने के साथ connection object बना है, इस connection का object का नाम मैंने लिखा है mydb। अगर मुझे चेक करना है कि connection established है नहीं, there is a function called as a isConnect। अगर मैं लगाता हूँ if mydb dot isConnect और अगर ये प्रिंट करता है देखिए connected, इसका मतलब क्या है कि establish हो गया connection। अब मैं इसके साथ कर्सर बनाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज योर कर्सर, मैंने एक कर्सर बनाया है, टू क्रिएट ए कर्सर देयर इज ए फंक्शन डॉट कर्सर। सो मेरे कनेक्शन का नाम था mydb डॉट कर्सर, इट विल क्रिएट ए कर्सर, इन माय केस दैट इज myCR। अगर मुझे क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी लिखने के लिए मैंने अपना एक स्ट्रिंग बनाया है, उसमें एक स्ट्रिंग में सारी क्वेरी लिख दी है। जैसे यहाँ पे मैं उन बच्चों के नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ, उन बच्चों का डिटेल सेलेक्ट कर रहा हूँ जो जम्मू से हैं। तो सिटी इज इक्वल्स टू, अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। जहां भी मैं इसको लिखूंगा इसका मतलब होगा परसेंटेज एस दैट इज रिप्लेस्ड बाय सम वैल्यू। इन दिस केस परसेंटेज, देखिए क्वेरी सिर्फ इतना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द वेयर सिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एस। अब परसेंटेज एस मीन्स ये वैल्यू जो है एस की वैल्यू रिप्लेस होगी परसेंटेज जम्मू से। सो यहाँ जम्मू की जगह अगर मैं दिल्ली लिखूंगा तो दैट विल रिप्लेस बाय द दिल्ली। सो इट विल इट्स मोर डायनेमिक, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस थिंग। Then I am going to execute this cursor. When I am going to execute this cursor means you can create query or execute that query with the execute function. So when you will create the query, that is in my case st, I am passing this query to the execute function and execute function will give me a result and that result is stored in a myCR, मतलब कर्सर में स्टोर हो जाता है। कर्सर मतलब रिजल्ट सेट भी कहते हैं इनको कभी कभी, मीन्स वो मेमोरी जहाँ पे हमारा MySQL से कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद रिजल्ट होके जो आया है वो यहाँ स्टोर हो जाता है। ये प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर पर रन कराएंगे, देखेंगे इट विल वर्क। सो अगेन रनिंग इट, और ये कुछ आप देखिए यहाँ पे ये टेबल शो कर रहा है जैसी आपकी MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे शो होती है, बट दिस इज माई ऑन पाइथन नॉट ऑन MySQL कमांड प्रॉम्प्ट। तो बच्चों ध्यान रखिए सारे के सारे जो समरी है वो यही प्रोग्राम है, आप इसको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है, दूसरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तीसरा कर्सर बनाना होता है, और चौथा स्टेटमेंट होता है वो एक्सिक्यूट कराना, वो क्वेरी लिखना जिसका आपको रिजल्ट चाहिए। जैसे इस केस में मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ टेलीफोन डायरेक्टरी, सो फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग क्रिएट डेटाबेस टेलीफोन डायरेक्टरी। आप जब यही सेम कमांड MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे तो क्या होता है, एक नया डेटाबेस बन जाएगा टेलीफोन डायर का नाम से। तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे mycursor.execute create database टेलीफोन डायर, सो ये क्या करेगा, ये इस डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। देन अगेन आई एम रनिंग अगेन ए क्वेरी शो डेटाबेस। शो डेटाबेस क्या बेटा रिटर्न करता है, डेटाबेसेस। शो डेटाबेस रिजल्ट कहाँ से आएगा, MySQL से आएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा, MyCursor में। अगर मुझे देखना है तो देखिए फॉर लगाया x इन MyCursor, प्रिंट x कनेक्शन डॉट क्लोज, ये क्या करेगा, ये कनेक्शन को क्लोज कर देगा, पर कब करेगा, प्रिंट कर देगा सारे रिजल्ट को। सो अगर मुझे कोई टेबल, जैसे अब मेरे डेटाबेस क्रिएट हो गया, अगर मुझे इसमें टेबल क्रिएट करनी है तो अगेन सेम थिंग, कनेक्शन स्टेब्लिश, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कर्सर क्रिएट करना। देन important is this one statement, you can create table, customer id, customer name, variable name, जैसा हम लोग करते हैं है ना, create table कमांड यूज करते हैं MySQL कमांड। तो सेम क्वेरी यू हैव टू राइट ऑन execute फंक्शन। फिर इसको रन करेंगे, देन यू विल सी देयर इज ए, आप देखेंगे कि कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे टेबल मालिक की और उसको देखना है, ठीक है। फिर जो सेम कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, कनेक्शन बनाया, फिर कर्सर बनाया, देन अब मुझे सिर्फ डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब कस्टमर, इट विल नॉट शो यू रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है बच्चों, कर्सर में। सो MyCursor में अगर मैं 1 by 1 वैल्यूज को डिस्प्ले करूंगा तो रिजल्ट देखिए आउटपुट इस तरह से आएगा। तो जो टेबल आपको वहां दिख रहा था वही रिजल्ट आपको अब यहाँ दिखेगा, पर ये कहाँ दिखेगा, MySQL कंसोल पे ना दिखकर बेटा ये दिखेगा
आपके पाइथन आउटपुट पे। अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, सिंपल है, you know how to insert the table. How can you insert the value into table? You have to be write down the command insert into customer values and the values. देखिए आप देखिए सेम, पहले स्टेटमेंट सेम, सेकंड स्टेटमेंट सेम, थर्ड स्टेटमेंट सेम, बस एक्सिक्यूट में यहाँ पे हम क्या करना है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज the same SQL query which you have to write on the MySQL console that you have to write down on execute. The same. If inserting required by the taking input, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, देखिए बच्चों अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे करेंगे, तो यूजर से इनपुट लेना है, जैसे मुझे कॉलम बाय कॉलम मैंने वहाँ CID नेम, टी नेम और DT, ये मैंने 4 वेरिएबल बनाए और यूजर से इनमें वैल्यूज ले लिया। वैल्यूज को लेने के बाद आप जरा इसको देखिए, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन रन करा के दिखाया था, एक पोर्शन आपको रन दिख कराया था और आपने देखा था वहाँ %s लिखा हुआ था, ये फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर बोला था मैंने। फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर का यूज डायनेमिक क्वेरीज का लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेरी को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, पहले मैंने इंपोर्ट किया MySQL कनेक्टर को, दूसरे स्टेटमेंट में कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तीसरे में कर्सर बनाया, चौथे में मुझे क्या करना है, एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट में मुझे क्या करना है, क्वेरी, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉलम्स के नेम एंड देन वैल्यूज। वैल्यूज मुझे पता नहीं है, दैट इज %s, 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 %s। जैसे मैंने अभी बताया था, %s की जगह वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जो दूसरे इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखी जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया, वेरिएबल और CID नेम, DT और DT, ये 4 वेरिएबल्स को यहाँ स्टोर करा दिया। ये तो क्या होगा, CID विल बी रिप्लेस्ड बाय द S, नेम विल बी रिप्लेस्ड बाय द S, tnum will be replaced by the s and dt will be replaced by s. So क्या होगा, ये एक तरह से ये होगा insert into customer id d and the values that is you already taken from the user. Now after that you have to commit that. Whenever you have to update your data, then there is a function called commit, ठीक है। So last connection जो था, that's named conn डॉट कमिट, जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे तो जो क्वेरी मैंने इंसर्ट की थी वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे फिर से इसको देखना है कि मेरा क्या टेबल बनाया कि नहीं, देन मैंने क्या किया, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम यूजिंग अगेन mycursor डॉट एक्सिक्यूट एंड आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेरी. So in execute function, whatever you are writing in form of commands, that is the SQL query and that is going to be executed by the MySQL. That is very simple thing. Suppose we have to insert the multiple values, then what we have to do, we have to require multiple values. So for that, suppose in last example I have inserted a single tuple. Suppose I have to insert a multiple tuple, then I am creating a list of tuples, first tuple for first row, second tuple for second row, third tuple for third row. पहला स्टेटमेंट सेम है, सेकंड स्टेटमेंट सेम है, थर्ड स्टेटमेंट सेम है, फोर्थ स्टेटमेंट भी सेम है, बस करना क्या, फिफ्थ एक्सिक्यूट मैनी। अब एक्सिक्यूट से हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्सिक्यूट मैनी, ठीक है। एक्सिक्यूट फॉर सिंगल लाइन, फॉर मल्टीपल लाइन वी हैव टू बी यूज एक्सिक्यूट मैनी। जस्ट बेटा बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, यू हैव टू बी कीप रिमेंबर दैट. To execute a single line statement, I have to use execute key function, and suppose I have to be insert multiple values, then I have a multiple values, and for that multiple values I have execute many command, and then again the commit and then execute, then you will see the same. So all the programs you can pause this video and all this program you can run on your PC, but you have to be keep remember just little things, that your connection must be established properly. For that you have to write down the local host, user, proper username, password that you put when you have installed your MySQL and the database on which you want to be connect, ठीक है, just simple things. Now suppose you have to update the result, what you have to do, you have to be update command in your MySQL. So first I have imported MySQL connector, the second statement I have created the connection object, third I have created the cursor, and then I have taken the ID against which I want to change the name.
So query is the same, update customer set customer name is equals to %s, means I am going to be create this dynamically, means some s means the values that is replaced by the CID, and the where customer is ID is a new thing. So the data is the name and CID, means customer name is this name and this name is variable name and CID is this variable. So see this query means update select customer name percent, data means name, percentage is replaced by the name and customer ID will be replaced by the data. And the same thing you will find deleting a row. Suppose we have to delete the record, then we have a delete command. We have a delete command, and that delete command, how it's work, you know that delete from customer where customer ID is so and so. So first statement is import the MySQL connector, second statement that establish the connection, third statement creating the object, and important one, see this query delete from customer where customer ID is %s and %s will be replaced by the CID. So मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनपुट लिया है ID, तो जो भी यहाँ से इनपुट होगा पहले CID में स्टोर होगा और वो CID वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी S से. सो जब ये क्वेरी रन होगी तो क्या होगा, क्वेरी विल रिप्लेस बाय दिस डेटा, मींस जो ये बच्चे का जो भी आपने इनपुट लिया है कस्टमर ID इनपुट लेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा. सीधा आउटपुट देखिए, जैसे SQL में ये टेबल है, अगर कस्टमर ने इनपुट किया 1006, so 1006 is Jan, that will be replaced, that will be deleted, so it will be deleted from your memory. So basically we can getting it. अब आता है आपके पास कि जो रिजल्ट है MySQL, जो आपका आपने देखा भी होगा, अभी पिछले जितने भी एग्जांपल्स हैं आपने देखा है कि वहां MyCursor के अंदर क्या होता है, MyCursor या कर्सर के अंदर क्या होता है, रिजल्ट स्टोर होता है. वो रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, रोज में. अगर मुझे लिखना है, काउंट करना है कितना रोज है, देन आई हैव ए फंक्शन कॉल्ड, देन आई हैव वेरिएबल रो काउंट. सी दिस एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल द कस्टमर और मुझे और ये स्टोर कराया माई कर्सर में. कर्सर में क्या हुआ, डिस्प्ले करा दिया, रिजल्ट आया इस तरह से. अब आपके पास काउंट करना था कितने रोज हैं. तो प्रिंट टोटल रोज इज इक्वल टू माई कर्सर डॉ रो काउंट. तो ये क्या करेगा, माई कर्सर में जितने भी वेरिएबल में, माई कर्सर वेरिएबल के अंदर जितनी रोज है उनको काउंट कर लेगा. जैसे हमारे केस में 4 रोज हैं तो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, 4. अगर मुझे डेटा देखिए, अब क्योंकि अब मेरे पास जो आपका देखा हुआ कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन के बाद कनेक्शन बन गया, फिर कर्सर आ गया. यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो यही स्टेटमेंट अगर आप MySQL कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते तो क्या देता, टेबल देता. तो जब मैंने इसको एक्सिक्यूट कराया तो वो टेबल दिया. वो टेबल कहाँ स्टोर हुआ है, MyCursor के अंदर. अगर मुझे उनको रो बाय रो रीड करना है, सो देयर इज ए फंक्शन कॉल्ड फेच ऑल. ध्यान दीजिए फंक्शन का नाम क्या है, फेच ऑल. सो फॉर रो इन MyCursor जो फेच ऑल, ये क्या करेगा, रो बाय रो डेटा को आपको प्रिंट करेगा. जब आप इसको इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. ठीक है. अगर कई बार हमें सिर्फ एक रो अगर रीड करनी हो तो देयर इज अ फंक्शन बैच 1. ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा रिटर्न करेगा, एक ही रो रिटर्न करेगा. अगर मैं फेच ऑल की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ फेच 1, तो क्या रिजल्ट आएगा, सिंगल रो. और अगर मैं लिखता हूँ फेच मैनी विद साइज, सो द साइज नंबर विल स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज दैट यू विल प्रिंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ MyCursor फेच मैनी 5, तो क्या करेगा, ये 5 रोज को रिटर्न करेगा. सो दिस इज द वे यू कैन राइट डाउन क्रिएट योर MySQL कनेक्टिविटी. सो बच्चों आपने क्या समझा है, पहली चीज कि मुझे MySQL कनेक्शन के लिए इंपोर्ट करना है MySQL कनेक्टर. दूसरा कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है. तीसरा कर्सर बनाना होता है. चौथा और इम्पोर्टेंट वन, एक्सिक्यूट कमांड. कर्सर बनाने के लिए, कनेक्शन के लिए कनेक्ट फंक्शन है, कर्सर के लिए कर्सर है, एक्सिक्यूट के लिए एक्सिक्यूट कनेक्शन आपके पास फंक्शन है. और फिर आप जो भी क्वेरीज एक्सिक्यूट के अंदर रखते हो दैट विल बी एक्सिक्यूट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.